क्वेश्चन इज अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। तो जो oogenesis होता है बेसिकली दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग और ooty, 3 polar body and 1 functional egg formation is known as oogenesis. Now hormonal control, which hormone that is responsible for the oogenesis? So from the hypothalamus, that is a part of forebrain, as we discussed in the last video of the spermatogenesis, hypothalamus release 2 type of hormone, mainly gonadotropin releasing hormone. These hormones act on the anterior part of the pituitary. This is the posterior part of the pituitary and this one is the anterior part of the pituitary. The pituitary is also known as hypophyseal system. So this one is also the second name of pituitary. So this anterior pituitary release hormones, gonadotropin releasing hormone, mainly the FSH, follicle stimulating hormone. This one is the follicle stimulating hormone, and this one is the luteinizing hormone. These two are the gonadotropin releasing hormone that are released by the anterior pituitary under the hypothalamus influence. So this FSH act on the Graafian follicles in their various stages, and these Graafian follicle, ovarian follicle is primary converted into after the maturation in the Graafian follicle, mature Graafian follicles. After the formation of a Graafian follicle from the primordial germ cell or primary germ cells, these Graafian follicles secrete hormone that is known as estrogen, female sex hormone. This increased level of estrogen make a negative feedback effect on the FSH. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्रीज लेवल है एस्ट्रोजन का, दिस एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय द ग्राफिन फॉलिकल्स. ठीक है, तो ये जो एस्ट्रोजन का लेवल इल्यूट हुआ है यहाँ पे, ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट. यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट देगा एफएसएच को कि फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, ग्राफिन फॉलिकल इज मैच्योर नाउ. ठीक है, और यहाँ पे ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है, दिस वन गिव द पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन द एलएच, कि एलएच का लेवल वहां पे राइज हो जाएगा और एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और एलएच का जो लेवल है दैट इज इंक्रीजिंग, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. और जब ये एलएच का लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या कराएगा बॉडी के अंदर, ओवुलेशन. उसको एलएच सर्ज भी बोलते हैं. जब एकदम से इंस्टेंट राइज होगा 14 डेज पे, अप टू 14 डेज एलएच का जो राइज होगा लेवल, तो वो क्या करा देगा, ओवुलेशन. एंड दिस ओवुलेशन एट दिस स्टेज फ्रॉम द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल secondary oocyte mainly. Secondary oocyte releases. So this empty graphene follicle is converted into corpus luteum. You can see from here, this one is the graphene follicle. From the graphene follicle, this secondary oocyte releases, and this remaining cell system, it is converted into the corpus luteum. This one is the yellow body, and this corpus luteum again secrete 3 hormones, estrogen, small level, inhibin, and the progesterone. This inhibin this inhibin also having a negative feedback effect on the FSH. FSH का लेवल फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा. और ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये कहाँ पे डालेगा नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, कि हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि जीएनआरएच जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, बोथ एफएसएच और एलएच, इन दोनों का राइज जो लेवल है वो क्या कर दो, डिक्रीज. अब दोनों के दोनों हार्मोन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. और जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन बॉडी के अंदर कहाँ पे हेल्प करेगा, एंडोमेट्रियम के, जैसे आप यूट्रस के अंदर दोनों साइड पे होती है एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है उसको करा देगा, ताकि यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे आके जो भी जाइगोट है वो इम्प्लांट हो जाए ब्लास्टुला स्टेज के अंदर. ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि पूरा का पूरा हार्मोनल कंट्रोल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ oogenesis. ठीक है भाई, आई विल रिपीट अगेन. oogenesis में क्या होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसल सिस्टम. ठीक है, एफएसएच और एलएच. एफएसएच क्या कराएगा, जो प्राइमरी जर्म सेल्स थी, ठीक है, उनको यानी कि ग्राफिन फॉलिकल, सॉरी जो एम्प्टी फॉलिकल्स थे उनको मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करा देगा. ये फंक्शन होता है एफएसएच का. अब ये जो फॉलिकल्स हैं ये सीक्रेट करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन.
जो एस्ट्रोजन हार्मोन का इंक्रीज लेवल होगा वो नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को कि अब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू हैव टू बी स्टॉप नाउ। एस्ट्रोजन का जो इंक्रीज लेवल है वो किसको करेगा, एलएच, क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट है, ये मैच्योर हो गया, इसको रिलीज कराना। रिलीज कराने के लिए एलएच जो होगा वो इंक्रीज होगा, ओवुलेशन कराएगा और सेकेंडरी oocyte स्टेज पे क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एग निकलने के बाद यहाँ से जो एम्प्टी एरिया बचा उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम है अगेन सीक्रेट 3 हॉर्मोन्स, स्मॉल लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन। इनहिबिन क्या करेगा, एस्ट्रोजन का लेवल ऑलरेडी स्मॉल है, इनहिबिन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक एफएसएच के लिए। प्रोजेस्टेरोन हाइपोथैलेमस को मैसेज करेगा कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की रिक्वायरमेंट भी है, बॉडी में नहीं है, तो यू हैव टू बी स्टॉप डाउन फॉर द रिलीज ऑफ दैट। ठीक है, और ये इंक्रीज जो प्रोजेस्टेरोन है ये बॉडी में प्रेगनेंसी को स्टेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड थिंग, ये क्या करता है, ये कराएगा यहाँ पे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करा देता है। ठीक है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल। नाउ कंपैरिजन बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो फर्स्टली दोनों ही गोनैड्स के अंदर होते हैं, टेस्टिस और ओवरी के अंदर हो रहे हैं, दोनों ही स्पर्म भी और एग भी, स्पर्म एंड एग बोथ आर द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। वाइटल प्रोसेस है दोनों ही। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बोथ आर द वाइटल प्रोसेस, स्पर्म फॉर्मेशन इज आल्सो नेसेसरी एंड एग फॉर्मेशन इज आल्सो नेसेसरी। न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक दोनों ही लेवल पे डिवीजन होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर भी डिवीजन होता है। दीज आर द similarities between the oogenesis and the spermatogenesis. Now what are the differences? First oogenesis. oogenesis start in the ovaries. ठीक है, कहाँ पे होती है oogenesis? ओवरीज के अंदर होती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। वहां पे क्या होती है, अलग अलग स्टेजेस पे क्या होती है, वहां पे आपको स्पर्म मिलेंगे। उसके बाद oogenesis जो कंप्लीट होता है वो कहाँ से, डेज से लेकर और ईयर लग जाता है इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, एक ये क्या है, oogenesis क्या है, दिस वन इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। बर्थ से स्टार्ट हुई, मदर के मुंह में स्टार्ट हुई, फिर वो जब बर्थ हुआ उस टाइम पे वो अरेस्ट हो गई, फिर प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुई, उसके बाद एक पीरियड आता है मेनोपॉज, उसके बाद फिर वो प्रॉपर्ली परमानेंट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि एक बार अगर स्टार्ट हो गई तो ये थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहेगी। एक एज के बाद क्या होता है कि एक एज के बाद जो स्पर्म का काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? बिकॉज द रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, योग फॉर्मेशन टेक प्लेस। जो oogenesis होता है वहां पे योग की फॉर्मेशन होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वाइटेलोजेनेसिस। ठीक है, वाइटेलोजेनेसिस बोलते हैं मेनली जो क्रोमोसोम लैम्ब्रस होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द योग फॉर्मेशन, बट इन द स्पर्मेटोजेनेसिस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ योग, सो देयर इज नो योग फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड दैट्स व्हाई द ग्रोथ फेज you can correlate with the yolk formation. Growth phase is shorter duration in the spermatogenesis, and in the oogenesis due to the yolk formation the growth phase in the oogenesis is a longer duration. There is polar body formation take place, around 3 polar body are formed, but in the spermatogenesis only there is no polar body formation take place. One functional ovum is formed out of 4. Here 4 haploid sperm take place. Here nucleus, bloated nucleus due to the nucleoplasm. Here nucleus is condensed due to the loss of RNA वगैरह जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनकी वजह से न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो oogenesis है ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है ओवरी में, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे होता है? आउटसाइड द ओवरी। बट स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे स्टार्ट होता है? कहाँ पे स्टार्ट होता है? टेस्टिस में स्टार्ट होगा और वहीं पे ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिफरेंट से क्या है, डिफरेंसेस है इनके बीच में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के अंदर। ठीक है, oogenesis में जो होता है एक्चुअली एग रिलीज नहीं होता, यहाँ पे जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज पे रिलीज होता है एग। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मैंने उसमें भी बताया है आपको कि जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म एंटर करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर तो उसको ट्रिगरेंस मिलती है, उस टाइम पे ये सेकेंडरी oocyte एग के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो देखो प्रोफेज 1 में कहाँ पे एस्कैरिस के अंदर जो होता है, ठीक है, प्रोफेज 1 के अंदर एग रिलीज होता है, मेटाफेज 1 में इंसेक्ट्स के अंदर मेनली, ठीक है, और मेटाफेज 2 के अंदर मेनली मैमल्स के अंदर रिलीज होता है, और
कंप्लीशन ऑफ मेटाफेज 2, मेटाफेज कंप्लीट 2 हो जाए तो उसमें कौन से फाइलम में होता है भाई, सिलेंटेटा फाइलम में मेटाफेज 2 को भी कंप्लीट करने के बाद जो है वो एग रिलीज होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख लेना, ठीक है भाई। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल, दिस वन आर द similarities and this one is the differences between the oogenesis and the spermatogenesis. Thank you.